इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए. So what is love jihad? It's like a Muslim guy getting married to another religion woman. Do not target our state Kerala. That's a God's own country. भाई बहुत ही And it's like what they are trying to prove. They are like trying है. अपने इंडिया में भी एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 से बना हुआ है. They could have changed this law. नहीं विश्वास आता तो गूगल कर लो. Hi everyone, welcome to our new video. Today's video is about लव जिहाद. Okay, so do you know what do you mean by love jihad? टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता लव जिहाद क्या है. और क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रेंड पे चल रहा है लव जिहाद, तो सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए. सो व्हाट इज लव जिहाद? It's like a Muslim guy getting married to another religion woman and converting that person to a Muslim That is illegally. love jihad. That is called as love jihad. But Okay. as per my understanding, there is no official thing or official record or a proof against all these stuff. It's like if two people want to get married, two different religion, do you think it's something wrong? No. No, there is no something wrong. But yes, if they are forcing, the other person to change the religion, convert or change the religion, then I feel That's not that an is, appropriate marriage, yeah, I that can is- say. yeah. क्योंकि यार आप इंसानों के साथ शादी कर रहे हो, ये धर्म वगैरह तो Comes later. कम्स लेटर. या बिकॉज आफ्टर ऑल चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर जो साथ में जिस इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो वो अगर ठीक नहीं है तो आपकी लाइफ भाई बर्बाद है. And it's not only about, imagine when the parents make you get married to a person that you have never met in your whole life, and you just get married, and how many issues are happening among there if it is same religion, Yeah. same caste, same arranged marriage. So lots of issues happen when two people are not good enough to handle their own stuff, or if the connection between those two people are wrong, then I don't think that marriage is worth, right? Yeah. वीडियो बनाने का पर्पस क्या है हम लोगों ने? No, it's like, did you hear the news which happened about the girl who got famous from Kumbh Mela got married recently in Kerala, right? Yeah, Seriously, those Kerala doesn't have any other work? पता नहीं. No, because already they know that this Kerala story drama is happening around everywhere. Yeah. And it's like what they are trying to prove. They are like trying to show that they are so good to others. Seriously, when they want to get married with someone, let them get married, na. Don't make it as a big publishing news around everywhere. Don't you think so? बट This ये is जो too much न्यूज़ of वगैरह unnecessary जो happening. पब्लिश हो रहा है, ये डू यू थिंक सो कि केरलाइट्स पब्लिश कर रहे हैं? ये तो सब कुछ नॉर्थ जो मीडिया है, जहाँ से सोशल मीडिया हो गया, हर जगह से मतलब ये लोग वो पब्लिश. मेरे को एक चीज़ पूछनी है, ये लव जिहाद तभी होता है कि ये लव जिहाद, ये शब्द आया कहाँ से है भाई? लव जिहाद, अगर एक हिंदू क्रिश्चियन से शादी करता है या सिख से शादी करता है तो क्या वो लव क्रिश्चियन हो जाता है या फिर वो लव सिख हो जाता है? क्या मतलब ये जिहाद मतलब It's इतनी like नफरत struggle. या इतनी नफरत क्यों? मतलब लोग आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट अपने दिल में क्यों लेके आ रहे हैं? ये है पहला सवाल. दूसरा, देखो हर देश का एक लॉ होता है. अपने इंडिया में भी एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 से बना हुआ है, जिसमें इंटरफेथ मैरिज अलाउड है. Intercaste marriage. इंटरकास्ट No, not intercaste, यार. It's इंटरफेथ, interreligion. इंटर रिलीजन, जो भी है मतलब यार, जो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक हिंदू मुस्लिम से भी शादी कर सकता है, एक मुस्लिम क्रिश्चियन से भी शादी कर सकता है, एक हिंदू सिख शादी कर सकते हैं. ठीक है, तो लोगों को दिक्कत मुझे नहीं समझ में आ रही है जब कोई एक हिंदू मुस्लिम से शादी करता है या फिर एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है. इन सब चक्करों में अगेन यार भाई केरला का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो यार? अगर उस लड़की को वो बंदा पसंद आया है और वो बंदा अगर मलयाली है, दैट इज़ हर डिसीजन, उसने डिसीजन लिया है यार. एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं कि वो जो है एडल्ट है वो लड़की. Yeah, even there was a news that the family members they said that she is is not underage. Yeah, underage. So since they have provided the certificate, Yeah. it will be valid, right? एंड लेट मी टेल यू भाई, नॉर्थ इंडिया में मे बी शायद गलत सर्टिफिकेट्स वगैरह बन के विदाउट वेरीफाई किए हो जाता होगा,
बट केरला में सब कुछ वेरीफाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हो. वहाँ पे ये चीटिंग वगैरह नहीं होती है. मुझे एक बात कहना है. हाँ, कहो. हमारे देश में एक लॉ है ना, हम्म. इस लॉ के हिसाब से चलो. अगर आप लोगों को ये लॉ पसंद नहीं है तो लॉ बदलो. करेक्ट? डोंट यू थिंक सो सो? या करेक्ट. अगर जनता को ये लॉ नहीं पसंद है तो भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है ना, वो पिछले 10 सालों में मेजॉरिटी में बैठी थी. इफ़ दे वांटेड दे कुड हैव चेंज्ड दिस लॉ. नहीं विश्वास आता तो गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, जो भी करना है सर्च करो. करेक्ट है. आपको यही जवाब मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर था, मेजॉरिटी थी, जहाँ पे वो इस लॉ को चेंज कर सकते थे. अब जबकि उन्होंने वो चेंज नहीं करा है तो That's the right of the people. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको समझना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है उस लॉ को चेंज करना. And in UAE, there is a strict law. You can't do anything as per your wish, or you can't get married to anyone as per your wish. Okay, you need to follow a strict law. If you are of the same religion, You can it is, marry. from a different country, you can get married here so quickly. Yeah. But if you are from a different religion, then you cannot can't marry here. So that is the law, and that's how it works You in can't UAE. do anything. You can't protest, or you can't, overcome. You can fight for anything. There is a law. That means there is a law. So you need to respect the law. जो whichever the country you are in, उस कंट्री के लॉ को रिस्पेक्ट करो, rather than मतलब हल्ला उल्ला करने से क्या मतलब, क्या मिल रहा है. अभी कुछ दिनों के बाद ये They टॉपिक both will live happily, yeah. and the people, those who were behind making all these things, Yeah. this will continue with the and wait for the another news, and then they will go behind it. एंड नाउ अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं क्राइम होता है. क्राइम तो यार हर जगह क्राइम होता है. मैरिजेस में जैसे लव मैरिज होता है, लव मैरिज में भी कितने न्यूज़ हम सुनते हैं कि लव मैरिज के बाद, अरेंज मैरिज में भी कितने मतलब मैरिज के बाद डिवोर्स हो जाते हैं. डिवोर्स नहीं कर पाते तो क्राइम हो जाता है. सो ये सब तो नॉर्मल थिंग्स हैं. And especially in Kerala, right? You give a lot of gold. Yeah. You will do everything as per religion, as per everything. You get married, and how long does the marriage last for? there was a news कि that's a very businessman वाला फैमिली है जिन्होंने अपने डॉटर को बहुत प्यार से बड़ा करा. एंड उस डॉटर ने भी मतलब अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर ली. बोथ फैमिलीज वर लाइक बहुत ही मतलब हाई क्लास फैमिली, पैसे वाली फैमिली. बट लेटर ऑन क्या हुआ, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया. एंड फिर क्या पता चला कि लड़के की तरफ से दहेज की मतलब और मांगे होती थी, उसके साथ मतलब उत्पीड़न होता था, मारपीट होती थी. तो ये चीज़ तो अरेंज में भी होती है, लव में भी होती है. तो आप लोग जो ये लव जिहाद के नाम पे हेटनेस फैला रहे हो, ये चीज़ ना करो यार. बेटर रिस्पेक्ट दी. शादी करो, but be happy. That's all. It doesn't matter which religion, which person, arranged marriage, love marriage, nothing matter, okay? But I mean, like, if you are happy with that person, right? I prefer that. Yeah. Don't you think so? Yes, even I also prefer that. Even अगर though- if you are not happy in your marriage, Move on. move on. बताओ भाई अपने पार्टनर को बताओ you are not happy, and the easiest solution यार हमारे लॉ ने दे रखा है डिवोर्स. As per me, or as per us, I think rather than targeting a state based on Kerala story, if you don't think this is a correct thing of getting married with two different religion, ask the government to change the law, or if Yeah. not, let them get married and live happily, rather than interfering, making it a big issues. या सो इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ क्योंकि शायद बहुत से जो लोग देख रहे होंगे उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा नॉर्थ साइड से. भाई अगर आपको इतनी दिक्कत है, सरकारों से बोलो लॉ को चेंज कर दे. रादर देन ये जो इतने इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते हैं, ये मीडिया भी जो मतलब मीडिया का रोल तो समझ में नहीं आता है. ठीक है, बाकी वो लोग अगर खुश हैं तो उनके लिए बेहतर है. अगर वो खुश नहीं है, दैट्स देयर डिसीजन. That's all. वो सफ़र करेंगे. इसके वजह से भाई केरला को टारगेट मत करो. वी केरलाइट्स आर हेल्पफुल पीपल. भाई हम जो है ना, अगर सामने वाला बंदा सही है तो उनकी हेल्प करते हैं. एंड लेट अस टेल यू, वी आर केरलाइट्स.
मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केरला से नहीं हूँ, ये मैं भी केरला से ही After हूँ। getting married to me, of course he will be a Keralite, right? A proper Keralite. Before getting married also, I am a Keralite. So the thing is, do not target our state Kerala. That's a God's own country. भाई बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, आप लोग हमारे स्टेट के आगे पीछे भी नहीं हो, ठीक है? पीछे भी नहीं हाँ, और ये जीडीपी लेके मत आया करो। अगर जीडीपी के हिसाब से देखोगे ना तो हमारे देश की जीडीपी शायद तीसरे चौथे नंबर पे आती है, और शायद यूके वगैरह जापान वगैरह नीचे आता है, बट जापान देखा है ना कितना डेवलप्ड है, बस यही समझो केरला उतना डेवलप्ड है। तो वीडियो Thank you for को यहीं watching. करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग Like, एंड subscribe and share. आप ज़रूर कमेंट में बताओ जो वीडियो देख रहे हैं कि ये जो लॉ है ये सरकार को बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर सरकार नहीं ये लॉ को बदलती है तो क्या हम सिटीजन्स को इस लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक स्पेस देना चाहिए लोगों को कि वो अपना, अगर इफ़ दे वांट टू गेट मैरिड टू अनदर पर्सन फ्रॉम अनदर कास्ट और अनदर रिलीजन, लेट देम गेट मैरिड। इट्स और ऑल last में देयर डिसीजन बिकॉज दे आर अडल्ट। या लास्ट में लास्ट में बताओ मेरा हिंदी अच्छा है या नहीं, हाँ ये ज़रूर बताना कि इसका हिंदी अच्छा है या नहीं, क्योंकि मैंने इम्प्रूव किया। या सो इस थैंक वीडियो यू वेरी मच watching Thank this you for video watching. Like, and yeah, comment thank you and again. subscribe. Have a nice day.